जी समी साहब, आप कौन है जी? मिस्टर समी। अस्सलाम वालेकुम जी। शायद भाई की हाल है, ठीक हो? जी जनाब। अच्छा, यार ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਨ ਚ 100 ठीक हो 150 गया, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ठीक। अच्छा, तो समी साहब ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸमी ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਫਾਤ ਈਸਾ ਤੇ ਹਯਾਤ ਈਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ, ਚੰਦ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੌਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਮੁਫਤੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਸ ਨਾਈਟ ਹੰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉਮਰ ਸਲੀਮ। ਚਲੋ ਅੱਜ मैं मीर सलीम के कि उमर सलीम के हुए? उमर सलीम नाम। मैं उमर सलीम के शायद यार। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान अपना अकीदा पक्का है, कोई ऐसी जी गलबात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मीर सलीम बना देता है शायद भाई की कोई गल नहीं। बाकी हुण मुफ्ती मुबशिर शाह साहब आ गए ने, कोई हवाले वगैरह लड़ने जे तो उन्होंने को ले लो। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਫਿਰ ਠੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਲ ਪਾ ਲਏ ਹੁਣ। ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਨੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਤ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਠਾਣਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ठीक हो गए जनाब, नो प्रॉब्लम। जी मुफ्ती मुबशिर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी करो भाई शाह साहब या करो ਤੁਸੀਂ इफी शाह साहब थोड़ा जिहा नीचे जाइयो। ਠੰਡ ਚੰਡ ਕੇ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। मुफ्ती मुबशिर शाह साहब एक सेकंड जरा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नीचे उतार के ना थोड़ी सीट चेंज कर दिया। सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं मैं आप ही उतार रहा सी, सीट चेंज की करनी थी थोड़ी। अच्छा जी, हम बात करते हैं मियारे नबूवत के ऊपर। और यार शायद भाई ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਬਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਗੋਲੀ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜੋ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਰਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੋ कि नहीं गल जी। बात यार शाह जी बोल रहे हैं, उन्हें बात करने दें। शाह जी बात कर रहे हैं यार, आवाज मेरी नहीं आ रही? मुफ्ती साहब आ रही है। हेलो 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 जी जी आ रही है, आ रही है आवाज तो ठीक, हुजूर वाला आ रही है बस।
अच्छा, यही मसला है कि जब उंगल पकड़ाएंगे ना तो ये पूरा हाथ पकड़ेंगे, पूरा बाजू ही पकड़ लेंगे। हम्म, हमारा ये क्लेम नहीं है कि हमने कादियानियों के साथ बात नहीं करनी, हमने कादियानियों से डिबेट नहीं करनी, ये तो हमारा मसला ही नहीं है। तो ये देखा जब बीच में बात निकली है ना, तो अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं जी अब तो तस्वीर तक ना लगाओ रहता कि मुंह से कादियानी लफ्ज तक ना बोलो। ये थी वो असल प्रॉब्लम। अच्छा, ये कौन होते हैं? ये वो ही हैं, इनके करिंदे हैं, कादियानियों की करिंदे हैं। ये कादियानी साजिश है। इस साजिश को पहले समझने की कोशिश करें। कादियानी ये साजिश कर रहा है कि देखो जी, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अब 1974 की असम्बली ने फैसला कर दिया हुआ है, काफर डिक्लेयर कर दिया है, बस अब तो नाम भी ना लो ना कादियानियों का, अब तो बिल्कुल छोड़ ही दो। ये असल में कादियानी साजिश है कि अंदर खाने ये छुप के अपना काम करते रहें और मुसलमानों की सफ़ों के अंदर घुस करके ऐसा जहन दें कि देखो जी कादियानियों से बात ही नहीं करनी, उनका नाम तक ना लो, बिल्कुल उनसे डिबेट नहीं होनी चाहिए, मुनाजरा तो है ही नहीं कादियानियों से। ये असल में कादियानी साजिश है। इस साजिश को समझिए, यहाँ जज्बात नहीं चलेंगे, यहाँ पे हिकमत अमली चलेगी। और हिकमत अमली के बारे में आता है कि हिकमत अमली मोमन का गुमशुदा खजाना है। हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप शिकस्त खा जाएंगे। देखेंगे जो हमारे उलमा इकराम हजारों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर जो अभी भी मौजूद हैं और कुछ विसाल फरमा गए हैं, तो वो कादियानियत का रद्द कर रहे हैं तहरीर की सूरत में, तकरीर की सूरत में। कुछ सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? कोई गलती करता है, कोई एक आलमे दिन चलो गलती कर देगा, मान लेते हैं दो उलमा इकराम हैं वो गलती कर लेंगे, ठीक है, वो भी इंसान है, गलती कर सकते हैं। कि सारे के सारे उलमा ही गलती कर रहे हैं? कौन सा एक आलमे दीन है कि जो कादियानियत का रद्द नहीं कर रहा? सुन्नियों के अंदर, शियों के अंदर, वाबियों के अंदर, देवबंदियों के अंदर कोई एक बता दे, एनी वन, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। अच्छा, तो गुजारा ये है कि हमें इस चीज को हवा नहीं देनी और इसका सद्दे बाब करना है, और ये साजिश को हम मजीद पंपने नहीं देंगे। इस साजिश को अभी से ही इसका जो है ना मुंह बंद कर दी, साजिश का मुंह बंद कर दिया जाए, नहीं तो ये आगे जाके अजदहा बन जाएगी। बहुत बड़ा ये साजिश, ये साजिश हो रही है। मैं आपको बताऊं, हम एक अरसे की डिबेट कर रहे हैं, आज तक हमने ये साजिश जो है ना नहीं उठने दी। कभी कभी हुई, कभी कोई आवाज उठी थी। तो अब मैंने टिकटॉक के ऊपर अंदाजा लगाया है कि ये आवाज उठ रही है और इसके अंदर बड़ी जान पड़ रही है अब, और ये आवाज उठाने वाले कादियानी है असल में। लो जी, नहीं कादियानियों से तो बात ही नहीं करनी, और कादियानियों का तो नाम भी ना लो यार। असल में कादियानी ये चाहता है कि देखो सोशल मीडिया के ऊपर इनका तज़किरे छोड़ दो, हम अंदर खाने काम करते रहेंगे। MTA चैनल हमारा बना हुआ है, हम तबलीग अपनी करते रहेंगे। हमारे रसाइलो जरायद निकल रहे हैं, हम अपनी तबलीग करते रहेंगे। हमारे जो कादियानी बराडे लगा के बैठे हैं, यूट्यूब पे चैनल लगाए हैं, ट्विटर के ऊपर बैठे हैं, वो उनको नहीं कुछ कहना, ना उनको नहीं कहना। हम मुसलमानों को जाके उनकी टांगे खींचेंगे, उनको कहेंगे
कि ओए यार ना कादियानियों का तो नाम भी ना लो ना, उनसे मुनाजरा ना करो ना, उनसे नहीं बात ही नहीं करनी, उन्होंने नहीं कुरान दी इससे बात हमने करनी ही नहीं है ले। तो बहरहाल इस साजिश को समझें, जज्बात की यहां पे बिल्कुल कोई कदर नहीं है। हम इनको जिस नुक्कड़ से आएंगे ना उधर जलील करेंगे, जिस नुक्कड़ से। इन्होंने चोर दरवाजे ये खोले हैं सोशल मीडिया के, टिकटॉक ये चोर दरवाजा है, अपनी अपनी बराडे लगा के बैठे हैं, वहां पे बैठ के कुरान भी ये पेश करते हैं, हदीसें भी पेश करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, हमारे मुसलमानों के ये दिमाग खराब कर रहे हैं। अब उनको कैसे बचाना है, सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, उनको कौन बचाएगा भाई? एक तो वो है हमारे जज्बे है कि मुबश्शिर शाह ये चाहता है नहीं कादियानियों से बात ना करो। अल्लाह की कसम मैं चाहता हूं, मैं सच मैं कह रहा हूं, मेरा सही अकीदा तो यही है कि मैं तो कादियानियों का नाम तक नहीं सुनना चाहता। बात करनी तो बड़ी दूर की बात है, मैं मिर्जे खंजीर का नाम तक नहीं मुंह के ऊपर लाना चाहता। ये मेरे अपने जाती जज्बात है मुबश्शिर शाह के, लेकिन मुझे पूरी उम्मत को देखना है, यहां मुबश्शिर शाह के जज्बात नहीं चलने, यहां किसी के जज्बात की कोई कदर नहीं है। हमने मजबूरी तौर पे पूरी उम्मा मुसलमान को देखना है कि वो किधर जा रहे हैं। तो ये बात है, डिसीजन जब आप किसी कौम को लीड कर रहे हो ना, जब आप लीडरशिप की कुर्सी पर फायज हो, जब आप कोई किसी चीज के नुमाइंदे हो, फ्रंट लाइन में हो, तो फिर बड़ी चीजों के तकाजे होते हैं भाई। पूरी कौम को फिर आपने लीड करना है ना। ना हम इनकी हर दलील का रद्द करेंगे, वो चाहे कोई सी भी हो। हाँ ये जरूर है कि अगर इन्होंने कुरान हदीस पेश किया तो उसका फिर मुंह तोड़ हम इनको जवाब देंगे, और कुरान और हदीस का असल चेहरा जो हमारे उलमा ने हमें बताया, हमारे बाबे बुजुर्गों ने बताया है, वो बताएंगे कि ये हमारे बाबे बुजुर्गों का ये इस्लाम है और तुम लोगों का इस्लाम ये है, तुम लोगों की कुरान हदीस ये है। और साथ ही साथ मिर्जे की करतूतें भी बताएंगे, तस्वीर के दोनों रुख दिखाएंगे हम। तो ये एक है मियाना रवि, यानी दरमियानी सूरत, बिल्कुल मतलब ये कि बात ही नहीं करनी। अभी तो बड़ा ये हमने जनाब इसका तोड़ किया है, नहीं तो पिछले दिनों तो ये बड़ी अरूज पे बात पहुंच गई थी, नहीं जी कादियानियों से बात ही ना करो, करनी ही नहीं, उनकी बराडों पे जाना ही नहीं। क्यों नहीं भाई, जाएंगे तो जलील करोगे ना, नहीं तो वो चोर दरवाजा उनका खुला रहेगा। इसी किस्म का एक मसला हुआ था आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के दौर के अंदर। बाज उलमाए कराम ने, बाज मकातबे फिक्र के उलमा ने फतवा दिया कि देखो जी, अब ये जो है हिंदुस्तान, ये दारुल हरब है, यहां से हिजरत कर जाओ। दारुल हरब वो होता है कि जहां पर आपको दीन के काम के अंदर दिक्कत हो, फराइज की सर अंजाम देने के अंदर दिक्कत हो, कुफर की तरफ से आपको नमाज ना अदा करने दी जाती हो, पर्दा ना करना दिया जाता हो, दाढ़ी रखने पे पाबंदी हो, मस्जिद बनाने पे पाबंदी, तो इस तरह के उसको फिर दारुल हरब कहती है। उसके मसाइल बड़े सख्त है, वहां से फिर हुक्म है कि हिजरत कर जाओ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने पूरी किताब लिख दी इसके ऊपर और फतवा दिया कि हिंदुस्तान जो है दारुल इस्लाम है, ये दारुल हरब नहीं है। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा, मुसलमानों, ओए तुम यहां से छोड़ के जब चले जाओगे ये तुम्हारी जमीनों के ऊपर कब्जे कर लेंगे, ओए तुम्हारी अमलाक के ऊपर काबिज हो जाएंगे, मुसलमानों ना जाओ यहां से। ये थी वो हिकमत अमली। ओ भाई,
آج بھی اگر آپ میدان چھوڑ دو گے وہ تمہارے میدان کے اوپر قبضہ کر لیں گے. میدان نہیں چھوڑنا, میدان کے اندر ہی رہنا ہے. تو جب لیڈ کر رہے ہو کسی کو تو بھائی پھر بہت قسم کے تقاضے ہیں جو مطلب فرض ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہاں پھر اپنے جذبات نہیں چلتے کہ میں کیا کہتا ہوں, میری کیا سوچ ہے, میری کیا فکر ہے. نہ بھائی نہ. تو پتہ نہیں میں نے جو بات کی ہے کسی کو سمجھ میں بھی آئی ہے کہ نہیں. اب یہ ہمارے سامعین جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے تو جی بات کر سکتے. بالکل سمجھ آ رہی ہے. یہ نچو رنڈی کون ہے؟ راؤ صاحب ہے؟ نہیں لگتا, نہیں آئی سمجھ کسی کو. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کی جو بات ہے بہت حد تک آپ نے جو بات کہی ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے نا یہ سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ جو پلیٹ فارم والی بات کہی ہے وہ 100% درست ہے. دیکھیں اب جب ان کو پتہ ہے نا کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں, تو یہ پورے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور یہ لوگوں کو مناظرے کر کے اور لوگوں سے باتیں کر کے ان کو پورے طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے نا, جن کا عقیدہ بالکل بھی مضبوط نہیں, ان کو تو ان کی بات پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی بات کو مان لیتے ہیں, اور جب یہ ان سے آپ بات کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اور پھر یہ آپ سے بحث بازی ختم کر کے آپ کو کہیں گے نہیں چھوڑو اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے, کیونکہ ان کے پاس دلائل جو ہیں وہ صحیح موجود نہیں ہوتے. اچھا میں آپ کی ایک بات سے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے, میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کو برا لگے. آپ نے کہا کہ ہمارے بابوں نے بتایا, بزرگوں نے بتایا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, میں آپ نے کہہ دیا میں نے صرف ایک ہی انسان کو سنا ہے اور ایک ہی شخصیت, انسان نہیں ایک ہی شخصیت جس کی وجہ سے یہ دنیا آئی, اس کے باتوں کو سننا ہے اور اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے, وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ہمارے آقا نبی, انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے ان کی باتوں پہ بالکل جو ہے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جیسے آپ کے بریلوی جو کوئی علماء ہیں ان کے دور میں جو ہے وہ کوئی واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایسے تو ہزار واقعات ہیں جو پیش براڈ گر گئی تھی یار, پلیز ڈبل ٹیپ گائز. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, مگر آپ ایک بات یہ دیکھیں جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے دین کے لیے آواز, اپنے نبی کی نبوت کے لیے آواز نہیں اٹھائیں؟ محترم میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے غلط سنا ہے. آپ اچھا چلے معذرت, میں نے آپ سے پہلے ہی معذرت کر لی. الٹ سمجھیں آپ, بالکل الٹ. میں جو بات کی نہیں, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, لگتا ہے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی, میں نے پہلے کہہ دیا. مفتی صاحب میری براڈ گر گئی تھی تو ابھی میں نے دوبارہ لائیو آن کی ہے, تو پلیز جو ہے نا ڈبل ٹیپ کرو یار, ڈبل ٹیپ کرو بھائی, ڈبل ٹیپ. اچھا مفتی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دینے ہی والا تھا, میں ان میوٹ کرنے والا تھا, لیکن میری براڈ گر گئی تھی. اچھا مفتی صاحب بات پتہ کیا ہے, ٹک ٹاک پہ نا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو بالکل نامناسب ہیں. ٹھیک ہے, مرزائیوں کی براڈیں, اب دیکھا آپ نے 3-4 ماہ پہلے دیکھا ہوگا کہ براڈوں پہ جناب مرزا قادیانی لعنتی کی فوٹو لگی ہوئی ہے, اور کھلم کھلا چیلنج ہو رہا ہے جی کہ سامنے پتہ لگ رہا ہے کہ مرزائی کی براڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی جی ہاں جی, میں نے تو ابھی تو کہا دیا نہیں, سب کو بلاک کیا ہوا ہے, ابھی مجھے شو نہیں ہوتی ان کی براڈیں. اچھا اب میں بتاتا ہوں, کیونکہ میری مرزائی اب جس جگہ پہ ٹٹی کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کی وہ مجھے فوٹیج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے ہمارے مسلمانوں کی براڈوں پہ اور مرزائیوں کی براڈوں پہ,
पिछले 6 माह से मैं अपने मुसलमानों भाइयों को कह रहा हूँ कि इंसान के बच्चे बनो, ये तुम्हारे सर पे के ऊपर नचेंगे, ठीक है, डांस करेंगे, ये आपको जलील करेंगे, ये गुस्ताखियां करेंगे। मेरी प्रोफाइल के अगर आप नीचे जाएं तो मैंने सबको आगाह किया है कि जिस तरह से आप इनके साथ मम्मी फूफी वाला गेम खेल रहे हैं ना, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, कौन खेल रहा है मम्मी पुफी वाला? चले मुफ्ती साहब, कभी ऐसा होता है कि नाम लेके बताना पड़ता है। मुफ्ती साहब आप छोड़ दें, सारे ही करते हैं, कोई नहीं, मैं आपको नहीं यार, आपकी नहीं पकड़ रहा, ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही, आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज अब यहाँ पे पूरा साल जो मैंने एनालाइज किया ना, ठीक है, माशाल्लाह आपका तजुर्बा सारी दुनिया को पता है, ठीक है, हम तो कहते हैं आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुफ्ती साहब एक असूल जब एक अब अभी देखें, हमने मर्जियों को इतना कर दिया है कि उन्होंने मिर्जे की वो जो गंदी रजाई है ना, मिर्जा गंदी रजाई वाला, वो उन्होंने रजाई को अच्छे से शॉपर में डाल के ना तो अपनी अलमारी में रख लिया ताकि उसकी बदबू भी ना आए, ठीक है। मर्जियों की बुरादों का टाइटल क्या होता है? प्यारे आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक लगाया होगा, खत्म नबूवत, वफात ईसा, हयात ईसा, ठीक है। मिर्जे को पूरे का पूरा इन्होंने ना बिहाइंड द स्क्रीन कर दिया। और ऊपर से अब जो हमारे माशाल्लाह मुसलमान हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुमने मिर्जे की डिसरिस्पेक्ट की तो हम फिर वहां चले जाएंगे। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि एक पर्या में एक पंचायत में बंदा खड़ा होके ये कह दे कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, मुफ्ती साहब गैरतमंद इंसान ये समझ सकता है कि चाहे उसने वो थप्पड़ मारा या कह दिया, दोनों ही एक बराबर है, वो थप्पड़ बज गया, चाहे उसने मारा नहीं, ठीक है, लेकिन असूली तौर पर वो थप्पड़ बज गया। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये पैदा होता है मुफ्ती साहब कि एक मरज़ई खंजीर का बच्चा, सवाल क्यों सलाम, सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहता है आपसे कुरान और हदीस पे। क्यों भाई? मिर्जे को तूने जो छुपाया हुआ है हम तो उस पे बात करेंगे और घुमा घुमा के तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मुफ्ती साहब, जो आपने बात की है ना, कल रात की मिसाल दे जो आपने बात की है यार, प्लीज आपकी वॉइस डबल हो गई है। अच्छा मुफ्ती साहब कल रात की मिसाल ले लें। वालेकुम सलाम, तैमूर भाई कॉल डाले, मैं आपको करता हूँ कॉल। कल रात को जो हुआ, ठीक है, आप खुद ही देख लें उसमें क्या था। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे आधा घंटा तो उसका पता ही नहीं चला कि वो कहना क्या चाहता है। हालांकि जितना भी उसने टाइम लिया, ठीक है, जितना भी उसको टाइम मिला उसने सिर्फ और सिर्फ तवीलें की। इसका ये मतलब है इनाम लेंगे, इनाम लेंगे, इनाम ने कहा नाम लाना है। अच्छा शायद भाई ये बात काफ़ी तवील हो गई है। अच्छा गुजारिश ये है कि देखें वो वीडियो अपलोड भी हो गई है, उसके कमेंट जाके पढ़ लें। और फिर मुझे पर्सनल के अंदर कई ऐसे दोस्त होते हैं कमेंट नहीं करते, सिर्फ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आके उसका एक तजज़िया पेश करते हैं। यकीन मानियो कि उसी एक उसका नाम मैंने रखा है इजराए नबूवत, यानी नबूवत का सिलसिला जारी है, कादियानी अकीदा पर कादियानी से मुनाजरा, ये वीडियो का नाम रखा है। तो वहाँ लोग तजज़िया भी यही कर रहे हैं कि जनाब हमें आज कादियानी अकीदे का पता चला है और शाह साहब आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा बात ये है, इधर देखें, मैं बार बार कहता हूँ कि अव्वल तो हम
कादियानी के सामने कुरान और हदीस को पेश नहीं करते। ये मेरी आदत है, ये मुबशर शाह की आदत है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अव्वल तो मुबशर शाह नहीं पेश करता, लेकिन जब कोई कादियानी पेश कर दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। बिल फर्द पेश कर ही दी है उसने, जैसे इजरा नबूवत वाले डिबेट के अंदर हुआ है, उसने आयत पेश की, उसका अब फिर जवाब देना जरूरी हो गया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे डिबेटर्स भी हैं जो करते ही कुरान हदीस के ऊपर बात है, तो क्या मुबशर साहब कहे नहीं वो सही नहीं कर? कभी सुना है मुझसे आपने? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कुछ होते हैं हमारे मजाज, कुछ होते हैं हमारा, हम क्या कहते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि मेरा ये तरीका कार है, बस ठीक है भाई, वो आपका तरीका है। तो यहाँ पर ये है कि देखें, हर एक के अपना अपना एक तरीका है। अब देखें ना शाहिद भाई, ये चीज़ें हैं सच्ची हैं, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे हैं कि जो गाली की ज़रूरत जब पेश आती है गाली निकाल देते हैं। कुछ ऐसे मुजाहिद हैं जो गाली निकालते नहीं हैं, जैसे मैं हूँ, यहाँ और दीगर बहुत से हैं, नाम बड़े हैं, वो गाली नहीं निकालते। दो चार हमारे साथी हैं वो गाली निकाल लेते हैं जहाँ पे ज़रूरत आती है, ठीक है ना। अब उनके अपने मजाज है। अब गालियां निकालने वाला ये आगे से तवक्को करे कि तुम लोग गालियां क्यों नहीं निकालते, तो ये तो गलत है, एक डिमांड है ना, डिमांड गलत है। और जो गालियां नहीं निकालते, मोती साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। उसको हैंडल करने का अपना एक स्टाइल है, अपना उसका मामला है। अब देखिए ना, मैं और मिसाल देता हूं, पिछले दिनों बड़ा ही रौला पड़ा था, उस चीज के आप भी गवाह हैं, आपने खुद भी ये ऐलान भी किया ना कि फलां बंदा फलां की बराड़ के ऊपर जाएगा तो उन्होंने असी टंगांगे, उन्होंने इंज कर देंगे। और ये आवाजें कई जगह से फिर उठ रही थी कि फलां बंदा के हमने फलां के बराड़ पे देखा तो हम ये कर देंगे। उसी पदाश में हुआ ये कि बाद जगह से ये आवाज पहुंची कि शाहिद के साथ उनको कोई इख्तलाफ हो गया उनकी जाती मसले पे, तो आवाज ये थी कि शाहिद की बराड़ पे अब जो जाएगा अब उसको हम टंगेंगे। तो मुबशर शाह तो मुसलसल शाहिद भाई की बराड़ पे ही आ रहा है, अब उन्होंने मुबशर शाह को भी रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। अब सुने आगे, जरा कहानी आगे थोड़ी सी बढ़ती है। अब देखें हालिया कुछ हुआ है, चलो मैं नाम आज ले ही देता हूँ, वैसे मैंने कभी नाम लिया नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरा मजाज नहीं है। आकाश मलक ने वो मेरे बारे बराडे लगाई और बहुत कुछ हुआ, और वहां पे जाके अब बैठ रहे हैं, शाहिद भाई भी गए, आप कई दफा गए, और क्या इसका नाम है, और दीगर हमारे दो आमिर क्या अवान और एक दो साथी और भी गए, और मैंने खुद भी देखा। लेकिन आज तक मैंने शाहिद भाई को या आमिर को कहा हो ओ यार तुसी क्यों जाते हो, भाई मेरा ये मजाज ही नहीं है। हाँ, इन्हें सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, मेरा ये मजाज ही नहीं। हर एक को मेरा ये, जब मैं ये लोगों के लिए ये कायदा कुलिया बनाया है कि हर एक आजाद है, तो मुबशर शाह भी उस कायदे के तहत ही आता है। भाई हर एक आजाद है, जो जिसके पास मर्जी जाए, हम कौन होते हैं किसी को कदगन लगाने वाले। और ये बात है, असूल जो होता है ना वो सबके लिए फिर बराबर होता है, और असूल ऐसे बनाए जाते हैं कि जो सबके हक में हो। ये ना हो कि वो आपकी एक जात, एक मुबशर शाह की जात के हक में वो एक कायदा कुलिया है जी, बस नहीं, कायदे कुलिये मजमूई तौर पे होते हैं जो सबके ऊपर अप्लाई करते हो। तो हर एक बंदे का अपना एक मजाज है, तरीक़ेकार है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हर बंदा आजाद है। जी शायद भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, वो जिसकी ब्रॉड का जिक्र किया ना आपने, ठीक है,
جو باتیں اٹھ رہی تھی میں نے جا کے اس کی براڈ پہ یہ بات کلیئر کروائی، اور کلمہ پڑھ کے اس شخص نے کہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں شاہد کا کوئی قصور نہیں ہے. شاید آپ کو میں نے وہ ویڈیو بھی بھیجی ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں شاہد کا کوئی قصور نہیں ہے. اس شخص نے کلمہ پڑھ کے یہ حلفیہ بیان دیا تھا، اور میرے نہیں خیال شاہد میں وہ میں نے آپ بھائی، کو شاہد ویڈیو بھائی بھیجی یہ ہے. بات نہیں، اوہو بات پھر غلط سمجھ گئے نا آپ. میں بات کوئی اور بتانا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی گالیاں نکال رہا ہے یا نہیں، یہ تو بات ہی نہیں. اور نہ ہی میں آکاش ملک کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے گالی نہ نکالے، یہ کہہ ہی نہیں رہا میں. اوہو یہ نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے، یہ ایک اصول میں بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ مبشر شاہ کے خلاف، ویسے تو ان لوگوں کی عادت یہ ہے، وہ ہر مجاہد ختم نبوت کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ علی لندن فیملی جو ہے یہ ساری، تو وہ کوئی مسئلہ ہی کو نہیں، ٹینشن کو نہیں. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیا ان کے پاس ہمارے ساتھی اگر کوئی جا کے بیٹھے ہیں تو کیا ہم ان کو اب کرنی شروع کر دیں، عامر کو ملامت کرنی شروع کر دیں؟ نہیں، میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ ہر بندہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں شاید بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کس وجہ سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. جی یہاں پہ مفتی صاحب مفتی صاحب یہاں پہ وہ پتہ کیا رہا ہے. احمد صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب آپ کے پیچھے کیا ہوا کہ آپ کا نام استعمال کر کے اس طرح کی گفتگو کی گئی اور لوگوں کو موقع دیا گیا جن کی اپنی ذاتی رنجش تھی، انہوں نے آپ کا نام لے کے بلاڈیں چلائیں، اور پھر اس میں آپ کو زبردستی انوالو کروایا گیا، اور پھر اس طرح کی حرکتیں ہوئی. ٹھیک ہے، حالانکہ میں آپ کی شروع دن سے عزت کرتا ہوں، آج تک میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، یہ آپ گواہ ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے، جو بھی بات ہوئی میرے اور آپ کے درمیان میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا، میں نے کیمرہ آن کر کے کان پکڑ کے معافی مانگی. اچھا پھر شاید بھائی پتہ کیا ہے، ایک میں معذرت، آپ کی بات بڑی بات ہے آپ کی تو کاٹ رہا ہوں، میرا یہ مزاج نہیں ہے شاید بھائی. دیکھیں مجھے بھی دیکھیں عاجز کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال چلو دو چار تو جاننے والے ہیں ہی نا، زیادہ نہیں تو چلو دو چار کی تو ہیں ہی جاننے والے. تو ہمیں بھی آ کے پھر لوگ کہتے ہیں نہیں شاہ جی تسی مبشر دے شاہد دی براڑ تے جانا نہیں، شاہ جی بائیکاٹ کر دیو، یہ کر. بھائی میں کسی کی ڈکٹیشن لیتا ہی نہیں، میں خود مختار آدمی ہوں، میں کسی کا بار لیتا ہی نہیں ہوں. مبشر شاہ کی جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے. آج تک میں نے کسی کا حکم نہیں مانا سوائے اللہ کے اور رسول کے. بس جو ہمارے دل سے اٹھتی ہے، جہاں پہ ہمیں نفع محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ دین کا نفع ہے، میرے حضور کی عزت کی رکھوالی ہے، دین اسلام کی رکھوالی ہے، یہاں ختم نبوت کا کام ہے، تو ہم بس بلا دھڑک وہاں پہ کام کرتے ہیں. اپنی عزتوں کی ہم پرواہ کبھی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی کی ڈکٹیشن لی ہے، کبھی نہیں، اور آئندہ نہ ہی تو کبھی ماضی کے اندر لی، نہ ہی مستقبل کے اندر فیوچر کے اندر ایسا کبھی ہوگا. ہم ایک آزاد پنچھی ہیں، بالکل آزاد. تو یہ باتیں ہیں، لیکن بات بہت دور نکل گئی کہ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمیں اپنی بات ضرور کریں ہم کہ میں ایسا ہوں یا میں ایسا ہوں، لیکن آگے اس میں کو دوسروں پہ اپلائی کرنا کہ جو میں کرتا ہوں تم بھی ایسے کرو، یہ صحیح، یہ غیر مناسب سا کام ہے. یہی ہے کہ حکم دینا. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے، تکبر بھی پایا جاتا ہے، ایک بڑائی پائی جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، دوسروں کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. کہ بھائی ایک تو چل ٹھیک ہے، تو ایک بندہ بھائی غلط کام کر رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے جو بھی ہے، آگے تو دوسروں سے بھی یہ کہہ رہا ہے تم یہ کرو، کیوں نہیں کرتے یہ، اور جو نہیں کرے گا تو میں اس کی بےزتی کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، اس کو خوار کروں گا،
ये कर दूंगा, नहीं ये गलत बात है। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो गलत है वो गलत है। तो ये बात हो रही है जी। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ नहीं शायद भाई असल में देखें सुनानी धी नू करनी धी नाल ते सुनानी नूह नू बात तो हम दो आपस में कर रहे हैं ना, तो असल में हमारे मतमे नजर सामईन है जिन तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हम तो आपस में चलो दोस्त हैं, एक दूसरे की जर जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये बात है, सुनानी जिनको सुनाना चाह रहे हैं हम उन तक बात पहुंच रही है जी। ਇਹ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। तैमूर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर वाला शहर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ओए मर जा तू मर जा तैमूर, मर जा तू। इन्ने दिनों का तू किथे गैब से होए? हुजूर वाला शहर सिर्फ मसरूफियात सन काम दियां, बस होर कुछ नहीं। तू साढ़े तो भी ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। मैं तो समझदा बशरशाही सारी दुनिया चो मसरूफ है, तू साढ़े तो भी मसरूफ हो गए। नहीं हजूर वाला शहर कोई ऐसी गल नहीं है, बस थोड़ा जिहा मसरूफ होया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापसी है इंशाअल्लाह। हाँ वो है वे कि मैदान मेरा पुत्र नहीं छड्डीदा हुंदा, मैदान नहीं छड्डना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਸਲ ਕਰੋ। ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਦਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋਤੋ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਰੂਫ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਸ਼ਿਰਕਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਕਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ठीक होगा इंशाल्लाह हुजूर वाला शहर इंशाल्लाह। बस दुआ कराया करो, अल्लाह खैर करे बस। हाँ ठीक है, अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाल्लाह। बस लगे रहो थोड़ा। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਹੈਕਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਫਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਬਰਾਡਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਤੀ ਜਿਹੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇ ਜਨੂਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਸਲ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਸਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਝ ਵੇ ਮੁਸਲਸਲ ਫਿਰ ਰਵੋ। ਕਦੀ ਆਏ ਕਦੀ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਦੋਸਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ AES ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇੰਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਫੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ रोटी तो नहीं खा रहे हो मुफ्ती साहब मैं पहली दफ़ा जो है अपनी ज़िंदगी में टिकटॉक डाउनलोड करा है और मैं आपको बताऊं हकीकतन मैंने ये नया अकाउंट बनाया है, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं था और आप यकीन माने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने पहली चीज़ जो मैंने वीडियो देखी थी ना अपने इसमें ये कादियानी की देखी थी, ठीक है। मुझे देखें ये मैं ज़्यादातर फेसबुक पे एक्टिव होता हूँ, तो ये जो तस्वीर ये चाचा जो नाक मिला रहे हैं ये दूसरे गोरिस, तो इनकी एक तस्वीर किसी ने लगाई हुई थी फेसबुक पे और उसके साथ बराबर में इसी की तस्वीर के मुंह पे अली मिर्ज़ा का चेहरा लगाया हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा ये कादियानी है। तो फिर मैं जब उनकी लाइव में गया और वहाँ पे मैंने उनसे मुनाजरा करा तो उन्होंने मुझे गालियाँ देकर निकाल दिया, ठीक है। तो फिर वहां से मेरे अंदर जुनून जागा, मैंने कहा अब इन लोगों से मैं जो है करूंगा बहस, अब ये मुझे जहाँ पे भी मिलेंगे क्योंकि ये यहाँ पर भी मौजूद है। मैं वैसे नहीं करता किसी से बहस इतनी, मगर लेकिन जब खत्म नबूवत की बात है तो मैंने तो इनसे, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी सारी जान अपने नबी पे कुर्बान करता हूँ, ठीक है। अब ये अगर करेंगे इस तरीके से अपने ख़त्म नबूवत के ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे, हमारे नबी के ऊपर, हमारे दूसरे जो नबी हैं हज़रत ईसा के ऊपर, इमाम मेहदी के ऊपर, तो ये तो फिर इनसे तो करना लाजिम है। आप चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि जितना आपने इनको ढील दी ये उतना आपके ऊपर जो है वो चढ़ेंगे और ये आपके ऊपर हावी होंगे, तो आप इनको ढीला नहीं छोड़ सकते। और गालियों से कोई बात होती नहीं है, ऐसे ही है। पढ़ी बात ये है कि देखें इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और इस्लाम का लिबादा ओढ़ने के अंदर क्या है कि कुरान है, हदीस है, समझ आई कि नहीं। तो एक बंदा कह रहा है कि ये कुरान हदीस को मैं मानता हूँ, कुरान हदीस को मानने के बाद वो दाढ़ी भी रखता है, पग भी बांधता है, वो जब कुरान हदीस की ही बातें करेगा लोगों ने तो कह रहे हैं ये मुसलमान है यार कोई। अब मिर्जा जूनियर जेलमी का नाम आपने लिया, वो भी तो यही काम कर रहे, कुरान हदीस हाथ में पकड़ा हुआ है, पग बांधी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, लोग तो कह रहे हैं भाई मुसलमान है। अब रोला यहाँ पर ये पड़ता है कि भाई कुरान हदीस का नाम लेकर के जो शरीयत इस्लामिया के ऊपर हल्ला बोल रहा है और शरीयत इस्लामिया की धज्जियां उड़ा रहा है और वो गैर शरी बातें कर रहा है, निकाब ओढ़ा है इस्लाम का। अब तो ऐसों को तो फिर जनाब पकड़ेंगे ना उलमा इकराम। वो जो कुरान और हदीस पेश की है भाई इधर आ उलमा को जवाब दे। और तू तो जाहिल है मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर जेल में, तू जो कुरान और हदीस इसकी बातें करता है इधर आके उलमा को जवाब दे। ये बात ऐसी है ही नहीं जो तू कर रहा है। तो यहाँ पे फिर जरूरत पेश आती है उलमा की। जब ये देखे मिर्जा कादियानी की निजी जिंदगी की बात होगी कि वो जानी था, शराबी था, रंडीबाज था, वो तो आम इंसान भी बात कर सकते हैं। वो तो चंद हवाला जाते हैं, वो तो किसी को भी रटवा दे वो बात कर लेंगे, अवाम तो बात कर लेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि जब कुरान हदीस की बात होगी तो उसका जवाब कौन देगा? अवाम को तो आता नहीं है। यकीनी सी बात है फिर उलमा ही जवाब देंगे। तो ये मसला हो रहा है। ये किसने लगाई ये तस्वीर? ये जो दोनों ये बाप बेटा है, ये बड़ा बाप है, ये छोटा बेटा है। ये जो है एस भाई, ये जो है मिर्जा खंजीर जो था, इसने भी यही किया था। पहले इस्लाम का बादा ओढ़ के उसने सारी जिंदगी में मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, हर मजहब के साथ पंगा लिया था और इस्लाम की बदनामी कराई थी। ये जूनियर जो है ये भी यही कर रहा है। बाबियात शाही, वो जो अपनी माँ को कहता है माँ शाही कोई नहीं, मैं तेरा दूध नहीं बख्शांगी,
तू मेरा की दूध बख्शना, तू ते मजे लेंदे सी ते मैं जम अच्छा गया। अच्छा जी जी सॉरी मैं आपकी बात काटूं। इनका इंजीनियर साहब का मैंने एक वीडियो इनकी देखी थी इंजीनियर साहब की। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं वही चीज पेश करता हूं जो कुरान और हदीस के अंदर, ठीक झूठ है, बोलता है, झूठ और बोलता है। यही चीज कादियानी भी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी यही कहते हैं, ठीक है। मगर अब बात यह है कि अगर जैसे आपने किसी बड़ी चीज के बारे में मालूम करना, तो अगर कोई बंदा जैसे मोहम्मद अली मिर्जा के पास चला गया सुनने के लिए, तो उसका फिर मेरे ख्याल से अकीदा भी चेंज हो सकता है, उसका फिर माइंडसेट भी चेंज हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं इनसे इख्तलाफ रखता हूँ, बहुत सारी बातों पे। तो और ये मैं एक और बात कहूँ, यहाँ पे कोई हनफी फिक को फॉलो करता है? मुफ्ती साहब आप तो करते होंगे, करते हैं भाई, ठीक है। ये हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह हनफी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये इमाम अबू हनीफा के ऊपर ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की जो बातें हैं वो दुरुस्त नहीं है। वो इतने बड़े इमाम, ठीक है, उसको आप कह रहे हो कि मैं उसको नहीं मानता, सही है, ठीक है, उनके फैसलों के ऊपर तो हम खैर ये अलग मुनाजरा हो जाएगा, मुझे यहाँ बात नहीं करनी, मगर मुझे इनकी बातें सही नहीं लगती भाई। कुछ बातें जो ये इमाम अबू हनीफा के ऊपर कहते हैं वो जायज़ नहीं, मुझे सही नहीं लगता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सच है क्या नहीं है। मगर जहाँ तक ये मिर्ज़ा कादियानी की बात है, तो मुफ्ती साहब मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब जैसे यहाँ पर ना कनाडा में, ये मैं टोरंटो में रहता हूँ, तो मुफ्ती साहब इनका जो सर्कल है ना वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, इनकी मस्जिद है, और ये भी जो है ये यहाँ पे हनफियों को भी ये गालियाँ देते हैं, क्योंकि हनफी चलता है यहाँ पे भी ज़्यादातर टोरंटो में ना। तो मसला ये है कि इनका, अब जैसे मैंने एक पहले भी एक सवाल करा था कि अगर कोई भाई जैसे कोई गोरा मुसलमान हो जाता है, ठीक है, गोरे ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये तो फिर उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देंगे। तो इनके लिए, इसके लिए आवाज़ हमें उठानी नहीं चाहिए कि गोरा मुझसे अगर किसी ने इस्लाम कबूल करा हो और गोरा मुझे आके बोले कि भाई नहीं मैं तो इसको नहीं मानता, ये बंदा ही सही कह रहा है, इसकी देखो इनके तो अभी बिल्कुल एंसेस्टर्स जो हैं वो अभी रिसेंटली में, तो फिर हम तो क्या कर सकते हैं। तो आप मुफ्ती साहब मुझे कोई ऐसा मशवरा दें, क्योंकि देखिए मैं तो इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, ख़त्म। ये यहाँ पे भी अगर चाहे मेरा यहाँ पे PR कार्ड भी चली जाए, मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर ये मुझसे आकर मिलेगा, और आपको पता है कि ये हाथापाई पे आ जाते हैं, अब पता होगा आपको, जैसे इन्होंने अभी मुफ्ती तारिक मसूद को जो है वो धमकियां दी थी, जो उन्होंने लब्बैक का नारा लगवाया था, मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ा मसला खड़ा हुआ था जिस पे इन्होंने ये शुरू हो गए थे। तो ये तो शुरू हो जाते हैं धमकियां देने पे, मगर मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ और मैंने अपने नबी के लिए जान देनी। तो मुझे बस ये चीज़ का होता है कि इनके लिए क्या करना चाहिए, या तो इनसे बात ही ना करें या इनसे लड़ें, क्योंकि जो ख़ात्मे नबूवत के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए तो हम तलवार उठा सकते हैं। जो नबी की शान में अगर वो है बातें जो है अपनी लाकर पेश कर रहा है तो वो तो फिर नाजायज़ है ना, वो तो उसके लिए तो हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। जी आपका नाम क्या है? नाम नहीं। मेरा नाम है मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। अच्छा अरहम। अच्छा अरहम भाई, बात ये है कि देखे ये मेरे कायनात जो है ना मेरे अल्लाह पाक की है, और ये निज़ाम, ये कारखाना है, कुदरत है, और ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। ये हमारी समझ से बालातर है कि वो ये निज़ाम कैसे चला रहा है, उसकी क्या मशीयत है, मेरे अल्लाह के क्या मामलात हैं, ये अल्लाह पाक को पता है। और ये जो फितने हैं ना, ये फितने जो है ना, ये भी अल्लाह को पता है, हर चीज का पता है। वो खैर को भी जानता है, वो शर को भी जानता है। मुफ्ती साहब एक मैं आपकी बात काट रहा था, जो मैंने ये मुसलमान करने वाली बात कही थी ना, असल में बात ये है कि मेरे पास सुने ना ऐसी साहब जी अच्छा सर बोलो, सॉरी माजरत, मैं बहुत माजरत। तो गुजारिश ये है मेरे भाई कि हमें अपने अपने काम करने हैं, बस जिसका जो है वो उसने वो काम करना है, वो हम वो ही कर सकते हैं जो जितनी हमारी ताकत है, जितनी बसात है, जितनी चादर है, उतना ही काम करना है हमने, उतने ही पाँव फैला सकते हैं बस। देखो मैं मुबशर शाह की अगर बात करें तो मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। आप टोरंटो की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पाकिस्तान बैठा हूँ।
मैं एक अपने घर में बैठा हूँ और आप एक बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन ये है कि मेरी यहाँ से आवाज़ जो है ना पूरी दुनिया में लॉन्च कर रही है। आपकी आवाज़ अगरचे आप टोरंटो में, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ लॉन्च कर रही है। आप अपने हिस्से का आप गहरे आलिम है, मैं आलिम हूँ, देखे ना, लेकिन काम दोनों ही कर रहे हैं। अपनी अपनी आवाज़, अपना अपना नॉलेज दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। बस हमारा बस इतना ही काम है। हम दुनिया पूरी को नहीं बदल सकते, कादियानियत को ख़त्म नहीं कर सकते, कुफर को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी इतनी ताकत ही नहीं भाई। हमारे पास सिर्फ स्पीकिंग पावर है, स्पीकिंग पावर। बस इस जुबान के ज़रिए जितना हम कुछ कर सकते बस करेंगे, और हमें सिर्फ इतने ही सवाल होने हैं, जितना हम कर सकते। हर इंसान से उतना ही सवाल होगा जितना वो कर सकता है, जितनी वो ताकत रखता है। उसकी ताकत से ज्यादा उससे सवाल नहीं होगा। तो बस यही है, हम यहां से बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू खत्म नबूवत का काम करेंगे, आवाज उठाएंगे, हुजूर की इज्जत की बात करेंगे। अब रही बात वो किसी पर असर करे या ना करे, वो अल्लाह पाक को पता है। अपना अपना काम करना है हमने, बस हमें इससे कोई गरज ही नहीं है। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या होता रहे, होता है। तो अल्लाह की कायनात है, ये अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह अपना निज़ाम बेहतर जानता है। और ना ही तो ये मुबशर शाह के सर के ऊपर ये निज़ाम खड़ा है। और भाई मुबशर शाह एक जाएगा, लाखों अल्लाह खड़े कर देगा। खत्म नबूवत का काम का बाहर कोई मुबशर शाह के सर पे तो नहीं खड़ा। ओ भाई ये एक जाएगा, अब करोड़ अल्लाह खड़ा कर देगा, अल्लाह का मामला है। तो हर इंसान को बस ये सोचना चाहिए कि भाई ये कोई मामला ये हमारी वजह से ही नहीं चल रहा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। कोई इंसान ये ना कहे, कभी सोचे भी नहीं कि भाई मैं बड़ा हूं, इस एक काम के अंदर मैं बड़ा हूं, ना, कभी भी नहीं। हर बंदा ये सोचे कि मेरे इस काम में मुझसे ऊपर भी हैं भाई, अल्लाह ने कहा हुआ है। तो ये इज्जो इनकिसारी जेवर है एक मोमिन का, और ये अपनाना चाहिए। कभी भी बढ़ाई नहीं, बढ़ाई अल्लाह को जेब है, बस अल्लाह पाक को जेब है। कोई गरूर, तकब्बुर या बड़ी बड़ी बातें, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने पकड़ के ये, ना भाई ना, ना भाई ना, कभी कभी भी नहीं। वो नेमत ज़ाइल हो जाती है। वो उजब, रिया, तकब्बुर, ये अंदरूनी बीमारियां जन्म लेंगी, और ये इंसान को ओए होए 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 इतना दूर फेंकती हैं ये बीमारियां, ओहो हो, नेस कर देती हैं। यकीन मानिए, फेसबुक पर बहुत बड़ा ग्रुप होता था हमारा, कादियानी मुनादरा ग्रुप, तो उसका चीफ एडमिन मैं ही था। तो बड़े बड़े उस एक ग्रुप ने ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी अल्लाह ने बरकत दी, इतनी बरकत उसके अंदर पड़ी कि ये जितने सोशल मीडिया के ऊपर आपको डिबेटर्स नज़र आ रहे हैं ना, उस एक ग्रुप से ये पैदा हुए, बड़ों बड़ों की तरबियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि उसी ग्रुप में बड़े बड़े खिलाड़ी आए ना, आज से 8-10 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। बड़े बड़े खिलाड़ी भाई, उनका नाम पूरे फेसबुक के ऊपर गूंज रहा था। और हमारा ग्रुप भी माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप था। तकरीबन जब ब्लॉक हुआ था तो तकरीबन 3 लाख उसके अरकान थे, और बड़ा ग्रुप था। और उसकी टक्कर का माशाल्लाह कोई ग्रुप भी नहीं था। बड़ा उसने काम किया ना ग्रुप में, तो हर रुकन बड़ा काम करता था, बड़े बड़े एक्टिव उसमें मेंबर थे। उफ़ो 24 घंटे डिबेटें होती थी। और
बड़ा इल्म और नॉलेज उस ग्रुप के जरिए ना दुनिया तक पहुंचे। ज़ाती तौर पे मुबशर शाह ने बड़ा कोई सीखा ना। अच्छा, तो कहने का मकसद ये, अच्छा वो बड़े बड़े जो नाम थे ना वो आज यकीन जाने नज़र भी नहीं आते, हमें भी भूल गए हैं। वो कभी बात होती है ना तो कभी हम कहते ओ यार वो एक मुंडा हुंदा सी यार, आज जानता भी को नहीं है कोई कि वो मर गए हैं कि जिंदा हैं, वो पाकिस्तान में ही हैं या किसी और मुल्क में चले गए हैं, जानता ही नहीं है कोई। तो बस ये एक यहाँ से नतीजा ये निकला कि ख़त्म नबूवत की बात या हजूर की इज्जत की बात जब करो ना, उसमें बड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये बड़ाई वो नेमत ले लेती है, फिर इतने दूर फेंके जाओगे, हाँ ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, हाँ याद रखो। ये तजर्बात हो चुके हैं हमारे साथ। कभी बड़ाई नहीं, अपने आप को कोई तुमन खान नहीं समझना। सुन ले तमाम सुनने देखने वाले, कभी तुमन खान कोई बड़ा नहीं समझना, मैं बड़ा, मैंने ये कर नहीं। और तूने कुछ नहीं किया, तू हर वक्त ये समझ के तूने कुछ नहीं किया। अभी तो तूने कुछ किया ही नहीं, किया क्या है? समझ आई कि नहीं आई? तो ये बातें हैं जी, बात करें। मुझे भी थोड़ा टाइम दें माशाल्लाह जी। मुफ्ती साहब। अच्छा, ये बिल्ला साहब कौन है जी? इनसे बात करते हैं, फिर वह साहब आपकी बारी। पहले जस्टिफिकेशन ले ले, कौन है जी बिल्ला बिल्ला साहब? साहब नहीं है, बेला है। साढ़े वास्ते तो बिल्ला ही है ना। ਕਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਾਬੈਲਾ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਕਰ ਛੋੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ मैं तो दो रोकनी ना बिल्ला साहब कोई भी नहीं बैठे, कोई बैठे ना, कोई मेनू शायद नजर नहीं मैं समझ बेला, गया, ये मैं बेला। समझ गया ये बेला कौन है। कौन ये है बेला मुझे पता है ये कौन है। उनके इनकी ये इनकी कादियानी में से है। इनकी ये 2 दिन पहले जब मैं उनकी वीडियो में उसमें था तो ये वहीं थी, मौजूद था। पता नहीं है वही वाला या नहीं है, लड़का है लड़की है, मगर वो लड़का निकला पर वो कहना मेरी गर्लफ्रेंड है। मौका भी है, मौल भी है, चुको फिर इसनू। मुफ्ती साहब भी मैंने बैठे ने। कॉल डाली है। अच्छा पता क्या, डबल टैप के मुझे पैसे नहीं मिलते, तो प्लीज़ खुदारा जो हतम नबूवत पे काम करते हैं ना, ये भी एक सदका जारी है प्लीज़। तो इससे लाइव जो है वो लाइव रहती है, ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਜੂਨ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਤੁਸੀਂ 12 ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੈਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੈਲਾ दिलप्रीत कौर। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਵਟਣ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਈਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬੈਲਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕੋਈ, ठीक है प्लीज। बहला आप ऊपर आओ कॉल पे, कौन हो आप, मेल और फीमेल? यू वांट टू टॉक टू अस, इफ यू वांट कम टू द माइक। लो जी, कोई जिन्ना तिकर नहीं आंदा ते ਉਹਨਾਂ तिकर है। दिलप्रीत कौर कादियानी मुरब्बी साहब लिख रहे ने शराबी के बारे। तो चलो जी, हम आपको फिर बताते हैं शराबी कौन है। तो उतनी देर मैं गुफ्तगू जारी रखूंगा, तो आप वो जिसको उठाना है ना उठा लीजिएगा। लो जी, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब 4 शराबें पीते थे। एक शराब का नाम था टॉनिक वाइन, दूसरी का नाम था स्ट्रिंग्स वाइन, तीसरी का नाम था पोर्ट वाइन और चौथी का नाम था कोला वाइन। कितनी शराबें बताई हैं जी, कोई बताएगा? 4 दसो, रिपीट करो। 4 रिपीट करो, केड़ी की ना ते दसो वाइना दा। ना स्वीट वाइन, कोल्ड वाइन, हार्ड वाइन। नहीं, स्ट्रिंग्स वाइन,
पोर्ट वाइन, कोला वाइन और टॉनिक वाइन। अच्छा जी, अब हवाले मैं देता हूँ। अब मुरब्बी नेड़े हो जरा भाई दिलप्रीत, इधर आ जरा, तेरा मैं दिल कड्डा, इधर आ, बोलो। रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 367 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है ब्रांडी, शीरी, विस्की, रम, पोर्ट, वाइन वगैरह शराबों के नाम नोके ज़ुबान हो रहे हैं। तो इससे पता क्या चला कि वाइन शराब को कहते हैं। मिर्जे ने खुद कहा कि वाइन शराब को कहते हैं। ठीक है जी, हवाला याद रखिएगा कि वाइन शराब को कहते हैं। अब आ जाते हैं जनाब हकीम मोहम्मद सैन के पास। हकीम मोहम्मद सैन लाहौर के अंदर रहता था और जनाब कादी यार मोहम्मद को मिर्जा कादियानी भेजता था कि जाके लाहौर से, कादियान से लाहौर, कादियान टू लाहौर जाके वहाँ से हकीम मोहम्मद सैन को ये मेरा ख़त देना और वो जो चीज़ें देगा ना तो वो लेते आना। अब वो ख़त लिखता है मोहम्मद सैन को। अब सुनिए वो ख़त सुनिएगा। मुहिब्बी अखवीम हकीम मोहम्मद सैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीदें और 1 बोतल टॉनिक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीदें, मगर टॉनिक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। बाकी खरीयत है, वस्सलाम, मिर्जा गुलाम मसीह मूतर अलैहि शलवार। ये है वो खत जो चीख चीख के कह रहा है कि मिर्जा कादियानी शराबी था और शराबों के डाले मंगवाता था, और कादी यार मोहम्मद से मंगवाता था। मिर्जा शराबी था, शराब के नशे में टोन रहता था। आगे एक बार इसने मुफ्ती साहब एक बार इसने शराब मंगाई सी ते जिसले दूई शराब दा नाम लिया सी कहंदा हाथ धो के लेके आई वो वाली, वो केड़ी सी? वो हवाले देने लगो। शाह जी बड़ी मेहरबानी, याद करवा दिया आपने। अच्छा जी, ये जो शाह जी अभी हवाला कह रहे थे सुन लें। सीरतुल महदी हिस्सा चहारम सफ़ा नंबर 143, कादियानियों की हदीस नंबर 1196 1194, उठा के देख लें। पोर्ट वाइन, और ये वो ही पोर्ट वाइन है जिसको वो शराब की बोतल को वो कहता है कि हाथ धो लेना कि ये शराब की बोतल पकड़ी है। आगे सीरतुल महदी है, हिस्सा सोम है, सफ़ा 801 है, कादियानियों की हदीस नंबर 929 है। यहाँ आपको स्ट्रिंग्स वाइन का जिक्र मिल जाएगा। जनाब तज़किरा किताब है कादियानियों की का कुरान, कादियानियों की मजहबी किताब तज़किरा, सफ़ा नंबर 525 है। और यहाँ पे आपको जिक्र मिल जाएगा कोला वाइन का, कोला वाइन। ठीक हो गया। तो बात चली थी शराब से, तो कह रहा था कि शाहिद शराबी और मुफ्ती मुबशर शराबी। ठीक हो गया भाई। देखो, तूने जो बात की थी तूने कोई सबूत नहीं दिया, बगैर सबूत के एक इल्ज़ाम और बुहतान लगा दिया। जबकि हमने अगर कहा मिर्जे को शराबी तो उसके सबूत फराहम किए। जब सबूत फराहम कर दिया जाए तो उस वक्त फिर इल्ज़ाम या बुहतान नहीं रहता, क्योंकि भाई सबूत दे दिए। अब इस कादियानी मुरब्बी के ऊपर लाजिम है कि हमारे शराबी होने के कोई सबूत दे दे। इस मुरब्बी साहब को मैं कहता हूँ आइए जी मैदान में आइए और निकलिए, मैदान में निकल के इसका सबूत दे दे। हमने तो देखो तुम्हारे मिर्जे को शराबी साबित कर दिए जी। बात करें। हुजूर वाला शान, मुझे लगता है उन्हें ना निशान 85 लहाम हो गया।
नहीं वो सबूत लेने के है, लगता है वो ना सबूत लाएगा, कोई लाएगा। आ जाओ मुरब्बी जी, आ जाओ भाई, सामने आओ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ मैं मुफ्ती साहब से कुछ पूछना चाहता था। जी पूछो। मुफ्ती साहब माशाल्लाह आलम दीन हैं और मैं एक गैर आलम दीन हूँ, ठीक है। अगर ये मैं गुमान करूँ कि मुफ्ती साहब बात कर सकते हैं तो मैं भी करूँ किसी के साथ, मेरा इतना नॉलेज ना हो कि मैं बात कर सकूँ उससे, ठीक है। उल्टा उसका वो और पक्का हो उस बात पे कि मैंने तो इसको हरा दी है, ठीक है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये झूठे हैं। एक ये बात होगी, और एक ये बात कि जो बंदा रद्द कर दे कुरान और हदीस को, कि माने ही ना कि आप बात करें कुरान और हदीस से, वो रद्द कर दे, तो क्या उससे बात करनी चाहिए कुरान और हदीस पे? और एक मैं गैर आलम दीन बंदा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, और मैं ये कहूँ जी मुफ्ती साहब जो बात कर लेते हैं मैं भी करूँ, और मुझे कुछ आता जाता ना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? मेरे भैया आपकी बात कोई समझ तो आई नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल जो थोड़ा बहुत समझ आया है तो मैं अर्ज कर देता हूँ। वो कहते हैं कि लिकुल्ली फन रिजाल, एक अरबी का मकूला है कि हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते हैं। और उर्दू के अंदर ज़रबुल मिसल है कि जिसका काम उसी को साजे। तो भाई अगर आप आलिम दीन नहीं और बात इल्मे दीन की चल रही है, तो फिर गैर आलिम तो बात नहीं कर सकता ना। क्या करेगा वो, बात क्या करेगा भाई? जब मतलब बात इल्मे दीन की हो रही है लेकिन वो आलिम दीन नहीं है, तो क्या करेगा बात? वो यकीनी सी बात है कि ऐसे ही होगा कि लोहार के पास जाके आप उसको बताएं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई टीका लगा दो। भाई लोहार के पास तू चला गया, जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ ना। अब डॉक्टर के पास गया जी, ये मैं छुरी तेज करवाने के लिए आया हूँ, अभी गोश्त बनाना था तो कुर्बानी के दिन आ गए हैं, तो ये छुरी टोके तेज कर दो। तो उस बंदे को कहेंगे लोग यार तू पागल तो नहीं है कहीं? तो ये बात आजकल ये हो रही है कि जो आलिम दीन नहीं थे ना, वो इल्म दीन की बातें कर रहे हैं, वो ठेकेदार बन गए हैं। उसकी एक जिंदा मिसाल है मिर्जा जूनियर जेल में जवेद गामदी है, ठीक है। हालांकि ये साहिल है, एक साहिल अदीम, ये आलिम दीन नहीं है, बातें इल्म दीन की करते हैं। भाई जिस चीज के तुमने पढ़ा है, डिप्लोमा की है या पूरी जिंदगी गुजारी है, वो काम करो। मिर्जा जूनियर जेल में अब प्लम्बर है, वो उसने टूटियों का एक डिप्लोमा किया हुआ है, प्लम्बरिंग का। ओ भाई तू इधर बैठ के बराडे कर, तू अपना एक चैनल बना, लोगों को टूटी कसने का तरीका बता, रेंज की किस्में बता, तू बता कि वो चूड़ी कितने इंच की होती है, तो कैसे चढ़ती है, तो क्या होता है, मुझे तो वो आता भी नहीं है। हाँ जी, ये है मसला यहाँ पे पेश आया है कि जिसका काम था वो काम नहीं कर रहा, वो कोई और कर रहा है। अब यहाँ पे देखें सोशल मीडिया के ऊपर एक टीवी एंकर है, वो पूरा साल वो कंजरियों को नचाता है और कंजरियां उसके प्रोग्राम में आती हैं, कुछ नच टप करती हैं, डांस डूंस होता है, गाने बाजे होते हैं, बस मौज मस्तियां होती हैं। अब जब रमज़ान आता है, लो जी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है जी, लो जी अब ना ये मसले बता रहा है जी। वो जो लड़की थी ना पूरा साल नचती है और जिस्म दिखाती है, वो अब वो चुन्नी ले लेती है सर के ऊपर, तो वो आलिमा फाजला और वो बन के बैठी होती। चलो जी, हेलो जी, ये है दीन। बताइए कि दीन ऐसे सीखेंगे? ये है दीन? मतलब ये कि अब मैंने जामिया बनाया है, जामिया खत्म नबूवत गुजरांवाला में,
एक 8 साल लग के एक आलम दिन तैयार होगा, दिन रात बच्चे पढ़ेंगे, सैकड़ों या हजारों किताबें वो पढ़ के एक आलम दिन बनेंगे, तो वो तो फिर फारग हो गए ना। फिर तो ये दुनिया के अंदर हजारों लाखों की तादाद में जो मदारस है ये तो फारग हो गए ना। अगर आलम दिन बनना इतना ही आसान होता तो हर एक डिप्लोमा वो प्लम्बरिंग का करता और आलम दिन बन जाता। वो स्कूल कॉलेज में जाता 4 दिन तो वो आलिम बन जाता फिर तो। अब देखे वहां पे जाके वो मैट्रिक साइंस करता है, एफएससी करता है, बीएससी करता है, वो केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ता है और दीगर वो इतने अलूम और फनून वो दुनिया के वो सीखता है, तो क्या ये पढ़ने से आलिम बन जाएगा? हैं जी? वो न्यूटन और उसके वो फार्मूले सीख रहा है, तो क्या वो कुरान की तफसीर उसको आ गई है, हदीस की शरह उसको आ गई है, उसको पता चल गया है? भाई कुरान की एक आयत को, सिर्फ एक आयत, पूरा कुरान नहीं, सिर्फ एक आयत को समझने के लिए आपको इल्मे सरफ की जरूरत पड़नी है, इल्मे नहव की जरूरत पड़नी है, इल्मे अदब की जरूरत पड़नी है, इल्मे फसाहत की जरूरत पड़नी है, इल्मे बलागत की जरूरत पड़नी है, इल्मे बदी और बयान की जरूरत पड़नी है, असूल कुरान की जरूरत पड़नी है, असूल हदीस की जरूरत पड़नी है, असूल फिक्र की जरूरत पड़नी है, इल्मे मुनाजरा की जरूरत पड़नी है, इल्मे फलसफा की भी जरूरत पड़नी है, इल्मे मंतिक की जरूरत पड़नी है, सिर्फ एक आयत को समझने। तो करतूत पल्ले नहीं अल्लाह दी कसम कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत है। तो अलहम्द के बारे में सिर्फ पूछ ले इनसे ये क्या है, ये बता गए आपको तो मुझे कहना मुबश्शिर शाह तू झूठ है। रट्टे रटाए तर्जमे हमारे बाबे बुजुर्गों ने किए हुए थे, उलमा ने किए हुए थे कि तमाम तारीफें, अब तोतों की तरह रट रट के सब ने यही तर्जमा करना शुरू कर, तमाम तारीफें। वो तो आलम दिन जानता है कि ये तमाम तारीफें तर्जमा पैदा कैसे हुआ है, हालांकि हमद वाहिद है। होना तो ये चाहिए था कि एक तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तो तमाम तारीफे का तर्जमा कहां से आ गया? हमद तो वाहिद है, तो ये जमा का तर्जमा कहां से आ गया? वो आलम दिन जानता है, वो आलम दिन जानता है भाई कि ये तमामियत का तर्जमा आया तो आया कहां से? और जाहिल को खबर ही कोई नहीं। अलहम्दु क्यों पढ़ा गया? वो आलम दिन जाता है। इसको अलहमदा क्यों नहीं पढ़ा गया? अलहमदी क्यों नहीं पढ़ा गया? दाल के ऊपर जबर और जेर क्यों नहीं पढ़ी गई? वो आलम दिन जानता है। लिल्लाही क्यों पढ़ा गया? लिल्लाहू क्यों नहीं पढ़ा गया? लिल्लाहा क्यों नहीं पढ़ा गया? वो आलम दिन जानता है। अगर इस कुरान के ऊपर इराब ना लगा होता या अरबी इबारत के ऊपर इराब ना लगा हो तो ये जाहिल कैसे पढ़ सकेंगे भाई? वो तो आलम दिन जानता है इराब कहां पे आना है, और एक जेर जबर से तर्जुमे कुछ का कुछ बदल जाता है। मुबश्शिर को मुबश्शर किसी ने पढ़ दिया, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया तर्जुमे का। मुदस्सिर मुदस्सर, जमीन आसमान का तर्जुमे का फर्क है। मंजल मंजिल, जमीन आसमान का तर्जुमे का फर्क है। ये तो उलमा को पता है ना मियां, जोहला को तो नहीं खबर इसकी। तो बात यह है कि कादियानियों के साथ या एथीएस के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, यहूदियों के साथ या किसी भी गैर मुस्लिम के साथ जब बात करोगे तो उनकी जाती जिंदगी पर तो बात हर खासो आम कर सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाएगी कोई कुरान या हदीस की तो उस वक्त खास तौर पे फिर उलमाई बात करेंगे, कोई और कर नहीं सकता। वो क्या करेंगे बात?
وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. جی بات کریں. جی بہت شکریہ. میں نے آپ سے اس لیے سوال کیا تھا کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے. جی میں بات کروں گا بات اس سے ہوتی نہیں. ٹھیک ہے. اور جس کو بات جو کر سکتا ہے اس سے وہ بات کرتے نہیں, اس کو نیچے اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سب کو پتہ چلے, سب سنیں. ٹھیک ہے. کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کیا بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو بات کرنی آتی ہوتی ہے وہ اس کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں, اس کو ایک بات نہیں کرنے دیتے, نیچے اتار دیتے. آپ نے بتایا, بہت شکریہ, کہ ایک عالم دین ہی بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر جس کو پتہ ہے اس کی زندگی پہ بھی اس نے کیا 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 ہے تو وہ بات کر سکتا ہے اس پہ. اگر اس کو قرآن حدیث کا نہیں پتہ تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر الٹا اس یہ کہیں گے جس کو ہم نے بتا دیا اس کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا یہ وہ. تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ جو لوگ ادھر جاتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا نہیں پتہ ان کو یہ سننا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ یہ کام ایک عالم دین کا ہے, غیر عالم دین کا کام نہیں ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. آپ دیکھیں ہم نے جو جامعہ ختم نبوت بنایا ہے گجرانوالہ میں, اب یہ اس کی اغراض و مقاصد اور اس کے افادیت آپ ذرا دیکھیے کہ یہ عام جامعات یا عام مدارس سے بالکل ہٹ کے ہے اس کی تعلیمات اور اس کے اغراض و مقاصد. اب عام مدارس کے اندر بھی وہ علم صرف, علم نحو اور دیگر علوم اور فنون سکھائے جاتے ہیں, لیکن ہم بھی سکھا رہے ہیں. لیکن اگر یہ صرف قادیانیوں سے بات کرنے کے لیے صرف 2-4 حوالوں کی ضرورت پیش آتی تو میرے پاس اتنے طالب علم اور طالبات ہیں وہ سارے کے سارے ابھی ڈیبیٹر بن چکے ہوتے اور آپ کے سامنے ہوتے. اگر اتنا ہی آسان تھا کوئی ڈیبیٹ کرنا یا مناظرہ کرنا تو حوالوں کی بات ہے نا. میں تو ٹیچر ہوں یار, میں تو ٹیچر ہوں ان کا. اور اتنی دیر کا ختم نبوت کا کام کرنے والا جب استاد ہو تو اس کے شاگرد تو منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ مناظر بن جانے چاہیے تھے. بات یہ ہے وہ اتنا آسان کام نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے. ان کو یہ علوم اور فنون سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ پائے کے ڈیبیٹر بنے. ہاں وقت لگنا ہے, وقت لگنا ہے, آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں. اگر یقین جانیے یہ 2-4 حوالوں کی ہی بات ہوتی نا کہ میں اپنے سارے شاگردوں کو 2-2, 4-4 حوالے دے کے بس ان کو ڈیبیٹر بنا کے سوشل میڈیا پہ لے آتا ہے, آلو جی پڑھو جی حوالے تے بس گل شروع کر دیو, بس نپ دیو, ویکھی جائے گی. نہیں انج نہیں. اب ہم جب ڈیبیٹر لے کے آئیں گے نا اپنے ادارے کے, لگ پتے جائے گا اللہ دے حکم نال, اللہ پاک دے فضل دے نال, حضور پاک دی نظر شفقت دے نال. آپ دیکھنا ساری دنیا دیکھے گی, لیکن ابھی وقت لگے گا, آہستہ آہستہ. بہت دور جانا ہے ہم نے انشاءاللہ عز و جل. ہماری تو پوری دنیا پر نظر ہے, کوئی یہ چھوٹی موٹی یہ ڈیبیٹیں شبیٹیں نہیں, بہت آگے کی نظر ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت دور کی کھیل کھیلنی ہے اللہ پاک کے فضل سے, اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ہے کہ بہرحال سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں پہلے علم سیکھا کریں, پہلے سیکھے بات ہے کیا, تو اس کی تہ تک پہنچ کے جب آپ کو پوری کمانڈ اس موضوع کے اوپر ہو جائے تو پھر ضرور بات کریں. صرف ایک آدھا حوالہ لے کر کے اور اس کے اوپر فخر کرنا اور بس میں بڑا بڑا ڈیبیٹر بن گیا, وہ بھائی نقصان ہو جانا ہے. بھائی تیرے پاس تو ایک آدھا حوالہ ہے, قادیانی نے تجھے اس کی طرف آنے نہیں دینا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ جب کوئی اور موضوع شروع کر لے گا تیری اس کے اوپر گرفت ہی نہیں ہوگی تو کیا ادھر پھر بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا. یہ معاملات ہے. بات کرے ہر ایک کر سکتا ہے, کسی کو ہم روکتے نہیں ہیں, لیکن کم از کم تیاری کر کے کسی ایک موضوع کے اوپر آپ کی پوری کمانڈ ہو کہ آپ کہہ سکیں کہ بھائی ایسی دی تیسی ایسے موضوع تے گل کر, تین میں باہ نہ پا دیتی تے پھر کمی ملو. یہ طریقہ کار ہے جی.
लगता है वो चले मुफ्ती साहब, अब जो है ना मैं ब्रॉड बंद करूं अगर आपकी हाँ, इजाजत हो, बिल्कुल क्योंकि यहाँ बिल्कुल, मैं पे भी भी कहने लगा था 3:30 हो आपका गया, भी मैंने टाइम हो गया है। बड़ा थक गया हूँ फिर मैं। खैर मेरे यार, शायद लगे रहो यार, शायद थोड़ा थोड़ा लगे इंशाल्लाह रहो मुफ्ती बस। ठीक है अल्लाह सोने नू, हजूर सोने नू, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ठीक हो गया। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इस हाज़री का जो है वो जज़ा दे, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ठीक है जी, ओके मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह एक मिनट ठहरे उधर, एक मिनट ठहरे। जी मुफ्ती साहब। राव साहब एक बैठे ने मिनट, कि दिलप्रीत मेरे भाई, दिलप्रीत मेरे भाई, राव साहब दिलप्रीत ਤੁਸੀਂ मेरे भाई। ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਢੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। नहीं हजूर, ऐसे किवें नाराज हो सकते? ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ WhatsApp ਤੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ अच्छा मैं करता ਇਹ ਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਖੈਰ ਮੇਰੇ। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, ओके जी, अल्लाह हाफिज अस्सलाम सबको। वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।